वो ताज लेके बैठी हैं। एक सिंपल सी चीज़ मेरे दिमाग में आती है आशा जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया आपसे, फैन फॉलोइंग आपकी किस उम्र में नहीं है। इट्स बीन अ लेगेसी व्हिच स्टिल कंटिन्यूज। I still remember my mom also talking to me about you. I would have been so happy अगर माँ आज यहाँ मेरे बीच होती। I just lost her a couple of months back. A die-hard fan of yours. मतलब ऐसी कौन सी पिक्चर का आपके डायलॉग भी उनको याद नहीं है। I am telling you great. और आज आपके साथ यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। Thank you. It's a great feeling, the ultimate feeling. I'm shocked. I'm sure even आपको भी नहीं पता होगा. What do you think was the age when Asha ji started his journey? 10. यार पढ़ क्या गया? 12. I started around 8 or 9. Oh wow. Amazing. Which movie, madam? It was first it was Ma, Baap Beti, Asman. After that, I went back for my studies. Then again, at the age of 15 or 16, I was signed for a film. And after 2 days, again I was out of the film. And within 7 days, again I was back in Mr. S. Mukherjee's film, Dil De Ke Dekho. And the rest is history. Ji? And the rest is history, madam. Thank you. Madam, I had a question. At the age of 8, आपने शुरू किया, तो थोड़ा सा और हमें बताइए उस जर्नी के बारे में, because who was your mentor? मतलब किस तरह से आपने डिसाइड किया उस एज में? इंडस्ट्री डिफरेंट थी। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी और लेट बिमल रॉय वॉज इन द ऑडिटोरियम। उन्होंने मुझे देखा डांस करते हुए। जब आइटम ख़त्म हो गई, मैं बाहर आई तो उन्होंने कहा कि वो लड़की को बुलाओ। तो आई वेंट टू हिम एंड ही सेड, फिल्म में काम करोगी? अब उस वक्त तो कुछ समझ थी नहीं। मैंने कहा हाँ करेंगे, और वैसे मैं फिल्म में आई। एंड दैट वाज आई थिंक माँ पहले, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बाप बेटी में रिपीट किया। एंड आई डिड I think it was Mr. Pancholi's film in which Nutan ji and Nasir Khan Saab was the hero, and I did a small little bit, थोड़ा सा डांस था। और मुझे याद है कि रात को 2 बजे मेरा मतलब शूटिंग का वक्त आया। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मतलब 8 और 9, तो वो बीच में मैं झपके खा रही थी डांस के। तो इट लुक्ड सो फनी, कुछ कान पकड़ के कुछ करना था तो वो सब हंसने लगे। बट इट वॉज, आई मीन 2 o'clock in the night was too much for an 8-year-old girl. So that's how I got into films. So glad you did. I had one question जो हम डिस्कस कर रहे थे। Madam, generations are moving on. You're seeing cinema evolving so much. So much is happening. In terms of आज की generation में, let's say, just hypothetically, if somebody had to play your part in Love in Tokyo, let's say remake बन गया, Part 2, still Love in Tokyo, who do you think क्या लगता है? who do you think is the best? कोई भी नहीं, madam. कोई भी नहीं. ऐसा तो नहीं होता है। कोई तो होगा। कोई तो होता है। कोई भी नहीं. कोई भी कोई तो नहीं. होगा। Can replace that. Why not? This is a tough question. आप phone a friend 50-50 भी ले That's what I'm asking the press. I like how you're throwing it to the press. That's the smart move. But who do you think, just out of the blue? I think Alia. Alia? Alia. Good choice. Big competition for us. Indeed, यार। Ma'am, who were the actors, rather the league of actors whom you worked with, the best of the actors, according to you, whom you had fun, rather you loved working with them? All were fun, you know. It was not that I didn't enjoy working with any of the heroes.
I enjoyed working with all of them. But yes, with Mr. Shammi Kapoor being my first leading man, it was because he started teaching me how I should be singing my songs, the lip sync, which I didn't know. And there was a rapport between us. So I would say it was Mr. Shammi Kapoor. Fantastic, great. मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, शम्मी कपूर एंड देवानंद वर योर टॉप 2. ऐसा कोई इंसिडेंट शम्मी कपूर जी के साथ, that something beautiful, something fun, something cute you like to share? We were shooting in Mahabaleshwar for Dil De Ke Dekho, and we were picturizing the song Meri Jawa Wa. And I remember that we were very naughty, we both of us. And there was a huge crowd, and there were girls, pretty girls, all watching our shooting. So we went behind the camera and started moving the camera to see who was the prettiest of them. And it was good that nobody realized what we were doing. But who could have been much prettier than you? No, they were very pretty girls. You can't say that, but they were pretty girls. एक्ट्रेसेस में कौन थी आपकी फेवरेट? ये पूछ ही लिया है तो. I like Deepika very much. चॉइसेस अच्छी है. दीपिका किसकी चॉइस नहीं भाई? रणवीर, शादी हो चुकी है, मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर रहेगा. What advice, ma'am, would you like to give to the younger generation, not just actors, performers as well, because आपकी dance performances भी आपने all over the world you've entertained, you've enthralled people with your dance performance. So what advice would you like to give? आपका क्या वो ब्रह्मास्त्र है? So that one thing कि या 3 things that they need to hold on to do well. Patience and discipline, and to be grounded. That's what I feel, that fame should not go to people's head, because that brings you down immediately. Thank you. Asha ji, you came from Boston. वहाँ पर you got the lifetime award. It was a huge Yes. prestige. And back to back here in India, you got the Palke Award. So I think you got 2 birthday gifts, just before your birthday. Yes, I agree with you. आशा जी वेब सीरीज में हकीकत है, वक्त लग गया आते आते यार. वेब सीरीज में काम करना चाहेंगे या फिल्मों में या सीरियल्स में देखने को लोगों को मिलेगा? बहुत उम्मीद है लोगों को आपसे. नहीं, I don't want to work. मैंने बहुत काम कर लिया है, और काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि I worked like a mad woman. There was a time when I was handling 4 things together. मैं अपनी सीरियल कर रही थी कोरा कागज, दूसरी सीरियल कंगन कर रही थी, और प्लस सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, एंड देन सेंसर बोर्ड. That really knocked me off, because it was 4 things doing together, and direction was not very easy, because you had to concentrate, you had to do your short divisions and all that. So वो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए. और तब उसके बाद भी पहले ये था कि I was working in films, और फिल्म्स के बाद ये होता था कि 9:30 to 6:30 शूटिंग करो, शूटिंग के बाद rush to the theatre and perform my dance ballets, which I used to produce, and that's about 3.5 hours of dance. 11 बज जाते थे रात को, फिर वही घर आए, मेकअप निकाला, खाना खाया, सुबह फिर 7 बजे उठे, फिर भाग दौड़, तो बहुत कर लिया. अब अगर आप मोड़ के पीछे देखती हैं तो आप अपनी जर्नी से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत संतुष्ट हूँ. क्योंकि लता जी से पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ना ही पुनर्जन्म लेना चाहूंगी. आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? अगर पुनर्जन्म का मौका मिले तो आप एज एन एक्टर अपने आप को जीना चाहेंगी क्या कुछ और? अब ये तो कहना मुश्किल है भाई. पुनर्जन्म में मुझे भगवान कहाँ डालेगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है. मेरे चाहने से क्या होता है तो भगवान के हाथ में होता है ना, मैं कैसे बोल सकूँ. मैम, पहले के दौर की फिल्में और आज के दौर की जो फिल्में बन रही उसमें आप क्या डिफरेंट पाते हैं? आजकल की फिल्में बहुत अच्छी बन रही है, टेक्निकली बहुत ही अच्छी है. सिर्फ ये है कि
जो एंटरटेनमेंट फिल्म्स बनती है उसमें मुझे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, लिरिक्स अच्छे नहीं लगते और डांस अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये डांस हमारी संस्कृति नहीं है। हम फॉरेन लोगों को देखकर हम उनको एम करते हैं, उनको देखकर वो लोग जो करते हैं वो हम करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे अलग अलग प्रांत के अलग अलग डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, इन्हें क्यों हम नहीं निकालते हैं, इन्हें क्यों नहीं करते हैं, ताकि दुनिया भर वालों को पता चले कि हमारे डांसेस कितने खूबसूरत हैं। आशा जी, आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, इतने साल का जो दौर था, इस दौर के बीच में कौन सा ऐसा रोल आप प्ले करना चाहती थी और अब तक नहीं निभाया है और अब निभाना चाहती, अभी भी वो मन में बात है, ऐसा कुछ है? नहीं, there were quite a lot of films. मदर इंडिया थी और एक दो पिक्चरें मैंने छोड़ दी और मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मैंने क्यों छोड़ दी, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम होती थी और आई थिंक लक। अच्छा मैडम जी, आपने सब हीरो के साथ मोस्टली काम किया, शम्मी कपूर से लेके, ओनली दिलीप कुमार वाज लेफ्ट। आप दिलीप साहब के साथ कैसे? एक पिक्चर थी ज़बरदस्त, उसमें मैं काम करने वाली थी, लेकिन द पिक्चर गॉट शेल्ड। आशा जी, आपके समय में मैडम फीमेल एक्टर्स में हेलन आपको कैसे लगी? यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम विद हेलन इन मोस्ट ऑफ द मूवीज, शी वाज डांसिंग सो नाइस। नहीं, बाकी सबके साथ भी काम किया है हेलन जी से नहीं, लेकिन हेलन जी एक बहुत ही अच्छी डांसर है और उन्होंने जो काम किया है वो तो सराहने वाली बात है, एंड आई थिंक उनके जैसे कोई नहीं है। Madam, you've also worked in Gujarati, Punjabi and Kannada films. I don't think कि अगर उनको knowledge होगा, but वो journey कैसी रही? Because बहुत I think बहुत कम actors हैं उन time के who have all done well in all regional languages. So how difficult was it? How challenging was it for you? I'm bad with languages, so when I started doing the Kannada film, it was a tough job और मुझे मेरी दोस्त शम्मी आंटी ने कहा, अरे क्या है, जाके 1 2 3 4 बोल देना, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा, नो अम्मा यू विल हैव टू स्पीक। मेरी जान निकल गई थी और बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, बहुत ही तकलीफ। हाँ जी, आपका सवाल। आपके समय में फिल्म में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होती थी, आज 4 दिन की रह गई है, इसका क्या दिमाग? थिएटर्स बढ़ गए हैं और वो मैं कैसे कहूँ कि लॉन्ग रन नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रिंट्स निकल आती है, 1000-2000 प्रिंट्स निकलती है, रिलीज़ होती है, तो एक थिएटर में कितनी बार आप जाओगे? सिंगल थिएटर से तो बात अलग थी, अब तो बात अलग हो गई है। आशा जी, काका जी के साथ आपने कई फिल्में की, कोई एक ऐसी फिल्म जो आपके दिल के करीब और मतलब उनसे जुड़ी यादें आपके साथ आपको कभी कभी याद आती है? किसके साथ? हाँ, राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म जो थी वो बहारों के सपने थी और उस वक्त वो बहुत ही शर्मालू टाइप के इंट्रोवर्ट पर्सन थे। इंट्रोवर्ट तो लास्ट तक थे वो, लेकिन बहारों के सपने में इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, बिकॉज एज आई सेड he was very new, but after that उनके साथ मैंने 3-4 पिक्चरें की, तो फिर तो रैपो हो गया था, तो उनसे बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, तो अच्छा रहा। मैम, आसमान में जो आपकी फिल्म थी, आपका नाम बेबी आशा पारेख ही था। हाँ, ये आइडिया किसका था? मेरा नाम आशा है तो आई नेचुरली आशा ही चाइल्ड रहेगा। आर्टिस्ट दे डिसाइडेड टू नेम यू दैट इन द फिल्म। हाँ, सब बच्चों को बेबी ही बोलते थे, अच्छा, जैसे बेबी तबस्सुम है, हनी, बेबी हनी, बेबी डेजी, जस्ट पुट बेबी। बेबी लगा देते थे, क्योंकि वी वर ऑल चाइल्ड आर्टिस्ट। आशा जी, हमेशा से अलग अलग किरदार आपने निभाया है, मीन्स अलग अलग मूवी में अलग अलग नाम। सो अब तक की जर्नी में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट अब तक आपको कौन सा लगा है और हमेशा याद आता है वही किरदार कि हाँ मैंने ये निभाया था
और अगर फिर से निभाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर निभाना चाहूँगी। पिक्चर कहना मुश्किल है बिकॉज आई ट्राई टू डू द फिल्म। मुझे जो अच्छी लगती थी स्क्रिप्ट वो मैंने की है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कौन सा मतलब किरदार मैं बोलूँ। हाँ, तुलसी मेरे आंगन की का किरदार अच्छा था क्योंकि कुछ नया था। साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि उस टाइम पे फिल्म्स जो होती थी बहुत समय मीन्स लगता था बनने में, लेकिन आजकल जो OTT में होता है वो बहुत ही कम समय में फिल्म्स बन जाती है और डिफरेंट कंटेंट्स देखने मिलते हैं। सो आपसे पूछना चाहूँगी, आप कितना पसंद करते हैं OTT के सभी कंटेंट्स को? OTT में कंटेंट बहुत अच्छा होता है, सिर्फ कई बार ये है कि कुछ सीरियलों में बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ होती है जो मुझे पसंद नहीं आती, वो मुझे शॉक करती है। और मुझे याद है, मैंने याद नहीं है कौन सी वो सीरियल थी जिसमें इतनी गालियाँ कि थोड़े दिनों के बाद मेरे दिमाग में भी वो सब गालियाँ घुस गई। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये सब गालियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा घर अच्छा है, हम अच्छे घर में रहते हैं, फिर अपने बच्चे ये गालियाँ क्यों सीखें? यू कैन इमेजिन कि मेरे दिमाग में जब घुस गया तो बच्चों के दिमाग में कितनी जल्दी घुसेगा। मैं तो अपना ये क्या अरे बाप रे ये गाली ओहो करके बाद में तो वो घुस जाता है ना, तो बच्चों को भी ये असर होगा। नहीं, बिल्कुल होता है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अ 3-year-old 3 साल का बच्चा मेरे घर पे है आज, इत्तेफाकन किसी के मुंह से घर पे गाली निकली और उस बच्चे ने उस चीज को पकड़ ली। आधे घंटे बाद वही बच्चा उस गाली के साथ बात कर रहा है। दिस वाज लाइक अ शॉक। तो ये बिल्कुल मैं नमन करता हूँ आशा जी को, ये गांठ बांधनी जरूरी है अपने घर लोगों को, सबको, कि हमारी संस्कृति क्या है। वी हैव टू ऑल बिलीव इन इट टू द utmost। जैसे आशा जी ने जिक्र किया डांसेस का, वी हैव ग्रेट dancers, we have great dance facilities out here. Why are we getting into that zone, getting everything from there? In fact, आज आपका दौर देखिए, आप आज का, वो लोग हिंदुस्तान का कल्चर अपना रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं। Let's gather ourselves. मीडिया से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आशा जी, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज आवाम तक अगर पहुंचना है तो 2 ही तरीके हैं, बॉलीवुड और एक ऊपर वाले का खौफ। उसको आप ब्लेंड कर दो, इट रियली हिट्स द मासेस टू द utmost। आशा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी दौर की हीरोइन जब शादियां कर लेती थी तो उनका कैरियर समाप्त हो जाता था। आज जो सिनेरियो चेंज हुआ है, इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा है। अभी अब जो शादी करके भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द कॉन्ट्री, हमारे ज़माने में अगर ये होता था तो हमको दुख होता था कि भाई इनका करियर ख़त्म हो गया, ये तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये जो हुआ है मतलब डिफरेंस बहुत ही अच्छा हुआ है।